Previous class we have studied various formulas relating to national income. Today I am starting the numerical portion, but before moving on to the proper numerical of national income, students, we will start from your conversion. Okay, now what do you mean by conversion? Means we have to convert data from one form to the another. Now very carefully listen to this concept, because formula everybody learns, but how to convert and get the desired result is little bit confusing. So first of all we will try and understand how conversion is done, then we will start formulas. Okay, suppose in question it is given that GDP is this, or the formula you are using, from that formula you are getting GDP, but they have asked you find out NDP. Okay, so now just see how you will convert this GDP into NDP. Now see, this is different, but this is same. This is DP. Now coming on to the formula, this for full form, this is gross domestic product, total production in the country at market rate. Okay, but this is NDP, national domestic product, means ki total production in the country excluding depreciation. Okay, तो यहाँ पे when we will convert, this is the same, there is no need to convert this. This is same DP. We have to only change G into N, gross figure into net figure, gross value into net value. So what we will do is, in order to convert G into N, we will minus depreciation. Okay, we will minus depreciation. If suppose GDP is given rupees 600 and depreciation is given rupees 100, and you have been asked to find out NDP, so what will be your answer? 600 minus depreciation, and therefore your answer of NDP will be how much? 500. Okay, so what we did, we subtracted depreciation from your GDP in order to get what? In order to get NDP. Next example, suppose in question it is said that GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ₹1000 एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को शॉर्ट में बोलते हैं CFC. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ₹200. फाइंड आउट NDP, FC या NDP. अभी FC की बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ NDP की बात करते हैं. G for gross, D for domestic, P for product. Gross domestic product is given. Consumption of fixed capital is given. You have to find out what? You have to find out net domestic product. Now see, when we are converting, तो हम लोगों ने क्या बोला? हमने बोला कि आप एक जगह इसको लिख लो अच्छे से बड़ा बड़ा, GDP एंड NDP. तो देखो क्या क्या अलग अलग है. PP सेम है, जनरली ये एक टर्म होता है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक टर्म होता है, तो DP और DP हमारा सेम है. चेंज क्या है? G को N बनाना है खाली. तो जब ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हम ग्रॉस को नेट वैल्यू बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं. क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन. अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अदर टर्म होता है. डेप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट्स और उसका कंजम्पशन, तो इनडायरेक्टली ये अदर नेम है आपके डेप्रिसिएशन का. तो बहुत बार मैक्सिमम 99% यही क्वेश्चन में दिया रहता है. डेप्रिसिएशन दिया है तो हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है. तो मैक्सिमम टाइम आपको CFC दिया रहता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि CFC क्या होता है. डेप्रिसिएशन तो पढ़ा, CFC क्या है? तो अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल.
तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस योर सीएफसी, राइट। तो जीडीपी कितना है 1000, ऐसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाता है 1000 माइनस 200 मीन्स योर एनडीपी is 800 rupees. This is your answer proper. Second conversion which you should know about is conversion of market price to factor cost. Suppose in many questions it is given कि there is NDP-FC, NDP-MP is given and you are asked to find out NDP-FC. We have discussed again also this previously, that what do you mean by market price and what do you mean by factor cost. Market price means कि goods and services are valued at the price being offered in the market. Market price पे उनकी value की जाती है. Quantity sold into market price, ये हो गया. लेकिन इसको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें प्रॉफिट्स एंड और चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. हम एक्चुअल पेमेंट्स जो फैक्टर सर्विसेज को मिला है हम उसे कंसिडर करते हैं कि यही हमारा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी में. तो फैक्टर कॉस्ट पे इनको लाते हैं. अब फैक्टर कॉस्ट पे लाने के लिए व्हाट वी डू इज़, ये हमको देखना है. तो सपोज हमने टर्म लिया कि कैलकुलेट NDP-FC फ्रॉम NDP-MP, यानी MP को FC में कन्वर्ट करना है. अब देखो बाकी सब सेम है. फुल फॉर्म बता दूं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस. अब इसका फुल फॉर्म क्या है, सेम, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, F फॉर फैक्टर एंड C फॉर कॉस्ट. ये मार्केट प्राइस पे वैल्यू हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, और ये आपकी फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू हुई है. डेप्रिसिएशन दोनों में नहीं है क्योंकि दोनों ही वैल्यू N और N है. नेट फिगर यहाँ भी है, नेट यहाँ भी है. तो डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन में दिया भी है कंफ्यूजन के लिए तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू कहीं नहीं दी है. कई बार क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. तो हमको चाहिए क्या, जो चाहिए क्वेश्चन से हम बस वही पिक करेंगे. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं सोचेंगे. फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप सिर्फ वही पिक करेंगे जो आपको चाहिए, और जो एक्स्ट्रा दिया है उसको इग्नोर करेंगे. ये नहीं सोचेंगे कि ये क्यों दिया है वो क्यों दिया है. यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है. फॉर्मूला पता है, वही चीज़ पिक करनी है जो आपके फॉर्मूले में है. फिलहाल डायरेक्ट क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है. अब देखो क्या क्या सेम है. NDP नेट सेम है, नेट सेम है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है. चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. तो हमको इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है. अब इनको कन्वर्ट करने के लिए मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं. क्या माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है. अब कई बार तो ये फिगर आपको डायरेक्टली दी हुई होती है क्वेश्चंस में और कई बार ये नहीं दी होती है. तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि नेट निकलेगा कैसे. अगर नेट नहीं दिया हुआ तो वी विल फाइंड योर नेट, वेयर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. अब ये दोनों ही चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं. देखो ये हम डिस्कस कर चुके हैं बट फॉर्मूले की बात हम कर रहे हैं. तो फॉर्मूले में ये होगा, जब भी MP को FC में कन्वर्ट करना होगा क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे. ये क्लियर है. ये क्वेश्चन में एज इट इज़ दिया हुआ है तो उठा लो, तो अगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे आप नेट निकालोगे. इसको नेट बोल देते हैं शॉर्ट में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, इतना लंबा बोलेंगे तो बोल दिया नेट. तो नेट अगर आपको नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होती है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, ये भी ट्रांसफ़र पेमेंट है. बदले में गवर्नमेंट आपको कुछ डायरेक्टली नहीं दे रही. सब्सिडीज फाइनेंशियल हेल्प होती है जो गवर्नमेंट देती है, ये भी वन साइडेड है, ये भी ट्रांसफ़र पेमेंट है.
ये दोनों ही एग्जाम्पल ट्रांसफ़र पेमेंट के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि योर NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1500 रुपीज़। ओके, कितना है? 1500 रुपीज़ है। और आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 300 रुपीज़ हैं। देन फाइंड आउट NDPFC। ओके, दिस इज़ योर क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें देखो हमारे पास क्या क्या सेम है और क्या क्या कन्वर्जन पे हम आ जाएं तो क्या क्या अलग है। यू विल राइट डाउन दिस NDPMP और यहाँ पे लिख लेंगे NDPFC। तो नेट सेम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम, ये और ये चेंज। तो मार्केट प्राइस को जब हम चेंज करते हैं, ओके, तो दिस इज सेम, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। हमको चेंज क्या करना है? MP को FC में बदलना है, तो हमारा डिज़ायर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो पूछा गया है वो हमको मिल जाएगा। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए क्या करना होता है? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो क्वेश्चन में दिए हैं कि नहीं दिए हैं? हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिए हुए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका? निकालना क्या था? हमको निकालना था NDPFC और दिया क्या है? NDPMP। ये प्रॉपर वे है लिखने का। अगर आपने ऐसे लिखा तो कभी ज़िंदगी में आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम का ये निकालना है। ये फॉर्मूला मिल गया NDPMP माइनस निट। तो NDPMP की वैल्यू कितनी है? 1500 रुपीज़ और निट डायरेक्टली दिया हुआ है, यानी इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, रेवड़ियाँ बट रही हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका -300। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हो गया? 1500 माइनस 300 यानी कि 1200 रुपीज़ आपकी आंसर हो गई। NDPFC हो गया, करेक्ट, ये हो गया। अच्छा, तो वो हो गया A एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें B एग्जाम्पल की, सपोज क्वेश्चन में दिया हो कि योर GDPMP इज इक्वल टू 1200 रुपीज़। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली क्वेश्चन में ना दिए हो, बोला हो इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज बाय द गवर्नमेंट इज इक्वल टू 300 रुपीज़। फिर बोले कि सब्सिडीज इज इक्वल टू 100 रुपीज़। देन कैलकुलेट GDPFC। ये आपका क्वेश्चन हो अगर, तो अब क्या करेंगे? हमको पता है कि IT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब मुझे निकालना क्या है? GDPFC। दिया क्या है? GDPMP। तो फॉर्मूला आप इसको पुट कीजिए। GDPMP नहीं निकालना है, क्या निकालना है? GDPFC इज इक्वल टू GDPMP जो दिया हुआ था क्वेश्चन में माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब ये तो दिए नहीं है तो वो हम उसको आगे छोड़ते हैं। कैसे करना है ये देखो। GDP सेम है, चेंज क्या करना है? MP को FC बनाना है। तो हमने पढ़ा MP को FC कैसे बनाते हैं? माइनस नेट करके। क्वेश्चन में माइनस नेट दिया है? नहीं दिया है। तो जब क्वेश्चन में माइनस नेट नहीं दिया तो आप ढूंढोगे कि क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दी हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज दिए हुए हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा IT माइनस सब्सिडीज आपका नेट होगा। तो यानी कि 300 माइनस 100 क्या निकल आया? आपका निकल आया 200। ये क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अब वैल्यू पुट कर दो, या तो ऐसे कर लो और थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, बट ऐसे करने से आपकी एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप रफ में भी कर सकते हो। तो GDPMP की वैल्यू कितनी है? 1200 रुपीज़। और नेट कितना आया?
नेट आया आपका 200 रुपीज़। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 1000 रुपीज़। ठीक, ये आंसर आ गया। अब इसको अगर दूसरे तरीके से करते, डायरेक्टली नहीं करके हम इसको यहीं कर देते, तो हम क्या करते, सेम में क्या करते हैं, जीडीपी की वैल्यू कितनी है? 1200 रुपये है। ठीक है, माइनस 300 माइनस 100, ये फॉर्मूला लग जाता, यानी कि जीडीपी एमपी माइनस योर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट आपका सब्सिडीज। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाता है? इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है? नेट हो जाता है। तो डायरेक्टली अगर लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, और नहीं तो इधर करके तब आप वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे। आपकी चॉइस है, मार्क्स नहीं कटेंगे, मैथ्स है, आंसर नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 1200 माइनस, इसको सॉल्व कर लो, कितना आया? 200 ही तो आया, देखो सेम आ गया, आंसर चेंज नहीं हुआ। तो 1200 माइनस 200 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, आंसर आ गया। तो या तो ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, फॉर्मूले से मतलब है, फॉर्मूला सही होना चाहिए। फॉर्मूले के भी हाफ मार्क्स हैं, याद रखना। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, अगर मान लो कैलकुलेशन गलत हो गई तो ये हाफ मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे कम से कम। और गलत क्यों होंगे? अगर ठीक से करोगे तो गलत नहीं। जनरली ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। अब बताओ, हलवा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स सीधे सीधे मिल जाए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो क्या बोला? एमपी को एफसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम एमपी को एफसी बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे। ठीक है, दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडीज, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट होता है, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट कन्वर्जन इज ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नाउ डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन योर डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, इट इज इन टेरिटरी. Of domestic territory, we have already discussed that it includes geographical borders, plus inland waters, plus embassies and consulates abroad, plus ships and aircraft which are owned by a particular country also comes in domestic territory. Whatever is earned or generated as an income in these is included in your domestic income. Okay, but national income is bigger concept, it is a broader concept. How come? National income includes income of all residents, okay, income of all residents inside India or outside India. Means it also includes NFIA. There are some Indians who goes abroad and work and generates income and sends back that income. It is known as factory income received from abroad. Factory income received. Okay, and there are few foreigners who earn income in India and sends that income abroad. That is known as factory income paid to abroad. Factory income paid. So net factory income from abroad is a difference of two, received and paid. Net factory income is equal to factory income received from abroad and फैक्ट्री इनकम पेड टू अब्रॉड. ठीक है, ये रिसीव्ड है, ये पेड है. जो इंडियंस ने कमाई दूसरी कंट्रीज में और यहाँ वापस ले आए, और जो फॉरेनर्स ने कमाई और अपनी कंट्री को वापस ले गए, पेड. तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारे हो जाएगी NFIA. तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज दिस ऑल्सो. तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, लेट्स सी दैट. ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से नैरोअर कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो ये छोटा कॉन्सेप्ट है, और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या इंक्लूड करती है, इनकम जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. और नेशनल इनकम क्या इंक्लूड करती है, ये इंक्लूड करती है डोमेस्टिक इनकम जो टेरिटरी में हुई है, प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो सिंपल सी बात है, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा तो हमको क्या ऐड करना होगा, NFIA ऐड करना होगा. नाउ अब हम देखें इसका क्वेश्चन कैसे बनता है.
अब टेक्निकल टर्म्स में डोमेस्टिक इनकम को हम और क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं NDPFC, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ये हो गया आपका NDPFC। अब ये होता है क्या? ये हो गया आपका NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDP क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम क्या है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगर बोला जा रहा है कि डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करो नेशनल इनकम में, तो देखो क्या अलग है। कुछ अलग दिख रहा है? ये तो सेम है, सेम। यहाँ भी नेट है, यहाँ भी नेट है। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, सेम सेम। फैक्टर कॉस्ट ये भी सेम है, ठीक है। ये भी फैक्टर कॉस्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है। अलग क्या है? अलग है हमारा डीपी और एनपी। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि वो प्रोडक्शन जो कंट्री के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, और ये नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि टोटल इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि ये और क्या इंक्लूड करता है? ये NFIA भी इंक्लूड करता है। तो डीपी को एनपी बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या ऐड करना होगा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब या तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, या फिर आपको निकालना होगा। डायरेक्टली दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर निकालना है तो NFIA मैंने अभी बताया कैसे निकलता है। NFIA निकलता है, क्या है फुल फॉर्म? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई बार ऐसा होता है इंडियन रेसिडेंट दूसरी कंट्री में जाके जॉब्स करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए 2-3 महीने के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में जो पेमेंट्स उनको मिलते हैं वो वापस अपनी कंट्री में लेके आते हैं। सिमिलरली फॉरेनर्स कई होते हैं जो हमारे इंडिया में आके काम करते हैं उनके एजेंसीज में या प्रोजेक्ट्स पे, और वापस जाते हैं, तो जो वो यहाँ से मनी लेके जाते हैं वो उनकी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड होती है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड, ठीक है। तो ये होगी हमारी इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में और बेटर तरीके से अगर मैं लिख दूँ तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड जो हमारे कंट्री में लेके आए, रेसिडेंस लेके आए, माइनस फैक्टर इनकम पेड। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा? NFIA होगा। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल इसका डायरेक्ट आता है। न्यूमेरिकल डायरेक्ट आता है तो क्या क्वेश्चन क्या होगा कि सपोज योर नेट नेशनल इनकम, अगर मैं बोलूँ कि NDPFC इज इक्वल टू 2000 रुपीज़ and your NFIA is equal to 400 rupees. Then calculate what? Calculate NNPFC. अब ये NNPFC क्या होती है? NNPFC होती है हमारी नेशनल इनकम। वाई से भी डिनोट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम को, ठीक है। और NDPFC क्या है? NDPFC है हमारी डोमेस्टिक इनकम। याद रखना, डोमेस्टिक इनकम पूछेगा तो उसका क्या वो है टेक्निकल टर्म? NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम पूछेगा तो टेक्निकल टर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये हमको निकालना है, तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो व्हाट विल बी देयर? अगर इसको हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं तो NDPFC और NNPFC। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस कहाँ कहाँ है, ठीक। ये तो सेम है, कोई इशू नहीं। ये भी सेम है, कोई इशू नहीं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि सारे रेसिडेंट्स की इनकम को ऐड करना है। तो डीपी को एनपी को में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ता है? NFIA। तब ये डीपी हमारा एनपी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो अब फॉर्मूला हमारा क्या बन गया कि NDPFC प्लस NFIA, तो हमारा ये आ जाएगा, यानी कि वैल्यू डाल दी 2000 प्लस 400,
इज इक्वल टू 2400। ये आपका आंसर आ गया। नेशनल इनकम पूछेगा तो भी यही आंसर होगा, और अगर बोलेगा कैलकुलेट NNPFC तो भी यही होगा, क्योंकि नेशनल इनकम का ही टेक्निकल नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब वो तो था डायरेक्ट क्वेश्चन। अब अगर बोल दे कि योर NDPFC is equal to 2400, okay, and factor income received from abroad is equal to 200, and factor income paid to other countries is equal to 100, then calculate NNPFC। ठीक है, ये निकालना है। तो फिर वही कन्वर्जन पे आ जाओ। कन्वर्जन में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ND है ना, NDPFC, और यहाँ पे क्या है NNPFC। तो क्या क्या सेम है, सेम है। ओके, सेम है। चेंज क्या करना है, DP को NP बनाना है। जब भी DP को NP बनाना हो, ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, ये G भी हो सकता था, ये G हो, ये G हो, यानी GDP और GNP भी लिखा होता तो भी हम ऐसे ही करते। जो अलग है बस उसका ट्रीटमेंट हमें करना है। अगर यहाँ लिखा होता GDPFC और GNPFC तो भी G और G सेम होता, ठीक है। बट यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया है NDPFC NNPFC, तो N और N सेम है। फैक्टर कॉस्ट सेम है, सिर्फ हमको इनको चेंज करना है। तो DP को NP बनाने के लिए क्या करना होता है, NFIA ऐड करना होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट NFIA नहीं दिया, तो अब हम यहाँ पे NFIA कैसे निकालें, ऐसे निकालेंगे। मैंने बोला ना NFIA इज इक्वल टू क्या होता है, NFIA इज इक्वल टू होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। तो कितना है, 200 रिसीव्ड है और पेड कितनी है, 100 है। तो आंसर कितना आ गया, 100। अच्छा, नेगेटिव भी हो सकता था यहाँ पे, वो हम आगे क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। 200 माइनस 100, तो ये आपकी क्या आ गई, NFIA आ गई। ठीक है, NFIA आ गई। अब NNPFC का फॉर्मूला पुट कर दो। NNPFC के लिए शुरू कहाँ से करना है, क्या दिया हुआ है, NDPFC दिया है। NDPFC प्लस NFIA, तो NDPFC कितनी है, 2400 प्लस NFIA कितनी निकली, 100 निकली। तो आंसर कितना हो गया, 2500। दिस इज, अच्छा ये तो हो गया आपका डायरेक्ट वे। अगर इसी को हम यहाँ पे भी इसको सॉर्ट आउट करते तो ऐसे ही लिख देते हैं कि आपका NDP अगर मुझे ये निकालना होता, अगर मैं इस तरीके से निकालती, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस क्या होता है, प्लस NFIA होता है। अब NFIA के दो कंपोनेंट्स हैं, वो हमको दिए हुए हैं, तो प्लस NFIA के कंपोनेंट्स देख लो, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। तो जो यहाँ रफ में कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है और अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो NDPFC की वैल्यू कितनी है, 2400, और फैक्टर इनकम रिसीव्ड कितनी है, 200, और पेड कितनी है, 100। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, 2500। ये हो गया। अब दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, फॉर्मूला इज सेम, बट यहाँ पे हमने स्प्लिट कोने में कर दिया रफ में, और यहाँ पे हमने फॉर्मूले में ही स्प्लिट कर दिया। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये इजी मेथड है, जो आपको आसान लगे और जल्दी हो वो करना है, हड़बड़ाना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और स्ट्रेट मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। ओके, छोटी सी स्टूपिड मिस्टेक से आपके मार्क्स चले भी जाते हैं, और इस तरह का कन्वर्जन अगर आ जाता है तो ये क्वेश्चंस लगभग 3-3 मार्क्स में आते हैं। तो सीधे सीधे इजी क्वेश्चंस है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आराम से 3 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो, इजंट इट?